Good morning all, and here is a beautiful problem based on application of complex number. As such, when you just look at the problem, the thought of complex number doesn't hit directly. But since you're already used to nth root of unity, which tells you if you have a unit circle centered at origin, and let's say if you take 1, 2, 3, 4, 5 points, so definitely these 5 equispaced points will divide this into 5 equal chunks. And if I call this 1, let's say alpha, this is going to be alpha square, alpha cube, alpha 4, and alpha 5 is 1. So x5 equals 1 will give you 5 roots, which is given by these vertex of pentagon, right? And what is this angle? Equispaced angle. These angles will be equal, and that's given by 2 pi by 5. So this was the basic theory of like roots of unity, and it can be proved in a very smart way, because we can write x5 equals 1, and 1 can be written as definitely cos 2k pi plus I sine 2k pi. And now from de Moivre's theorem, x is going to be, one of the value of x will be cos 2k pi by 5 plus I sine 2k pi by 5. And this, let's say if I call it alpha, so we got one of the values. If I'll take its fifth power, definitely it's also going to be 1. One of the obvious root that I'm having is x5 equals 1. To a kid also, if you ask, you can tell one of the solutions. Now what about next solution? That's also interesting, because what we can write, instead of writing 2k pi plus I sine, we could have written 2k pi plus 2 pi in general, right? And plus I sine 2k pi plus 2 pi. But will still give the same answer. So one of the values that we'll get is, again, x is going to be this. Now I can clearly see if I'll put k equals 0, I am getting this solution, first solution, right? So this expression cos 2k pi plus I sine 2k pi can be written in a more generalized way, because 2 pi plus theta is still cos 2 theta, because cos 2 pi plus theta is still cos theta. So in that sense, what we can do is, the values of x we can get 4 different. Let's say if I put k equals 0, I'm gonna get the first answer. If I'll put k equals 1, I'll get the second answer. Okay, if I'll put k equals 2, we'll get third answer. K equals 3, we'll get fourth answer. And k equals 4, we'll get fifth answer. Okay, so by doing so, or by playing with the values of k, and if we'll take any 4 consecutive k, or 5 consecutive k, if we take any 1, 2, 3, 4, 5 consecutive k, all these values, 1 alpha, alpha square, alpha cube, alpha 4 will be obtained. Now why we call it alpha square? Because you can clearly see the second answer is just square of the first answer, third is cube of this, that we can clearly validate. In fact, someone can take k equals minus 1, 0, 1, 2 and 3. So still it will give the same answer. The only thing, the order of answer will change. Okay, so for maybe what you're getting for 1, 2, 3, 4, 5. For minus 1, maybe it will start from here, then 0, 1, 2, 3, 4. So any 5 consecutive k values, if we'll take any 5 consecutive integral k values, if we'll take, that will scan through all the fifth root. And in general, it's true for even nth root of unity. So this was just a small example to recapitulate what we do in roots of unity. Now one more funda is, since x5 equals 1, so it has got roots as 1, alpha, alpha square, alpha cube, and alpha 4, where we know alpha is given by e to the power I 2 pi by 5. Euler's notation. So that helps me to factorize it, because x5 minus 1 will have x minus 1 as a factor, other root is x minus alpha. We have x minus alpha square, x minus alpha cube, and x minus alpha 4. Okay, so this is a cool way of factorizing this. Now the beauty of this way is some immediate
like magical result follows from it. Because if someone writes x5 minus 1 by x minus 1, is going to get x minus alpha square, x minus alpha cube into x minus alpha 4. Now let's say if I keep x equals 1, clearly I'll be slapped there because I can't directly put x equals 1, right? So what I'll do is this expression I can write as x minus 1 is a factor, and if we'll divide, we'll get x4 plus x cube plus x squared plus 1. So this equals this, which means x minus 1 will get cancelled if x is tending to 1, in that sense if I'm telling. So let's say x is tending to 1. So now if I put x is tending to 1, so this quantity will become 4 in the limiting case I'm telling, and that's 1 minus alpha square, 1 minus alpha cube into 1 minus alpha 4. Now what's the beauty of this? The beauty of this is you can clearly see the product 1 minus alpha square, 1 minus alpha cube and 1 minus alpha 4, that represents geometrically some beautiful construction, because 1 minus alpha means we have a complex number is starting from alpha towards 1. Okay, so this represents a complex number, or this vector. Again, you multiply with this complex number, you multiply all these complex numbers, because when I tell an arrow, it will have some x component and it will have some y component, right? So when you multiply all these arrow very beautifully, the answer that you are getting is 4 over here. Okay, what's more enchanting is if we'll take mod on both sides, still this is going to be 4, right? And this represents distance of 1 from alpha. So if you have got, let's say, A, B, C, D, E, 5 points, where A is 1 and B is alpha, C is alpha square, alpha cube and alpha 4. So what does this signify is, beautifully, this distance is represented by the first quantity, which is AB into AC into AD into AE is going to be 4. And that feels literally crazy, right? Now this has still some other significance, because 1 minus alpha you can even write in terms of sine and cosine, because that's quite clear. Because what is this distance? Okay, so this distance we know, since this angle, let's say, is theta, then we have a unit circle. So that guy is nothing but, from cosine rule we can find, let's say, AB square equals 1 square plus 1 square minus 2AB cos theta, and that will give me 2 into 1 minus cos theta, so it's 4 sine square theta by 2. So hence AB became 2 times sine theta over 2, right? And that's literally crazy, because if I'll find the other length AC, so it's exactly same thing, but now the angle is 2 theta, right? So I can write AC is gonna be still 2 sine of 2 theta by 2, so it will become theta. What about AD? That's going to be 3 theta, so 2 sine 3 theta by 2. And what about AE? It's gonna be 4 theta, so 2 sine 2 theta. Now we know theta is 2 pi by n, so that gives you another magical result. You see, like, how from fundamental we are building all these properties. So basically we know if you multiply these lengths AB, AC, AD and AE is gonna be 4 basically, which we have proved. Now there is another way of writing AB, which is 2, so we'll have to do the power 4 sine theta by 2 sine theta sine 3 theta by 2 and sine 2 theta, and that's gonna give me still 4. Now if I decode theta as 2 pi by n, it looks more cool, so we'll have to do the power 4 sine pi by n, second is sine 2 pi by n, third is sine 3 pi by n, fourth is sine 4 pi by n, right? Because we have theta over 2 is pi by n, and that becomes 4. So it shows, if I take the continued product sine pi over n, sine 2 pi over n, sine 3 pi over n, and sine 4 pi over n, it's going to give me 4 by 2 to the power 4.
In fact, you can generalize the result because here n equals 5 was nothing special. The mechanics, the genetics of the question will be same. And what we'll get for general, okay, so of course here n value was what? 5. So this result is valid for n equals 5. Okay, but in general, if I take n equals n, so this quantity is going to be n minus 1 by 2 to the power n minus 1. So what you can tell is sin pi by n, sin 2 pi by n, sin 3 pi by n into sin n minus 1 pi by n. So those continuing product will be n minus 1 by 2 to the power n minus 1. Okay, so we have proved this result very beautifully, see, by beating the basic. This also shows you how we are able to factorize x5 minus 1 into this form, right? Because we are writing x5 minus 1 by two different ways. One by common class 8-9 technique, otherwise this root or factor theorem, and just equating we can do. Similarly, you can write even x5 plus 1 also, because x5 plus 1 will have root sides now minus 1 minus alpha square minus alpha cube and minus this, because it's very simple. So x5 can be written as just minus 1, okay, and minus 1 can be written as, you know, cos pi this time, or 2k plus 1 pi plus I sine 2k plus 1 pi instead of 2k pi, and the same genetics will continue. Okay, so if it were plus 1, we'll have plus everywhere, right? For example, if we have x cube plus 1, how will you factorize? Will be x plus 1, then x plus omega, and x plus omega square. This you can convince yourself, because you know the roots of x cube plus 1 only minus 1 minus omega square. So roots difference only lies in negative. But now our question is little bit more technical, because here a square root is coming in. Moreover, if 24 is there, so we have 50-50. So basically this question is about k is running from 1 to n. If I think of a generalized version, well, let's say n minus 1 sine k pi over 2n. This we have to prove its root over n divided by 2 ka power n minus 1, right? So possibly this will be the generalized version of this result, and in fact it's true. So let's see how we can prove this result by the understanding of complex number. Now by the first analysis, आपको ये तो पता चल ही गया है, कहीं ना कहीं sin k pi by 50-50 लाने के लिए pi by 50-50, 2 pi by 50-50, 3 pi by 50-50 यूनिट सर्कल को हमको 50-50 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, या फिर मे भी 20-25 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा उसका एंगल लेके, या फिर 20-24 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. मतलब यही कुछ ऑप्शंस है. मतलब नाउ द क्वेश्चन इज क्लियरली इंडिकेटिंग that we have to go towards roots of unity. Okay, so what I'll do is I'll first in general I am trying to prove this result. ठीक है, उसके बाद फिर आप उसमें n को 20-25 रख लो, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा. तो चलो फिर इस जर्नी पे चलते हैं. This time if I consider, let's say, an equation z to the power 2n minus 1. Of course, I'll give you motivation at the last why I've considered this 2nth root of unity instead of nth root of unity. ये बात सिंपल है, क्योंकि देखो 20-25 अगर आप पुट करोगे इसमें, तो ये एक्सप्रेशन ये वाला आंसर दे देगा, पर्टिकुलर केस विच आई हैव गिवन यू. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ 2020 पुटिंग n एज 20-25. तो अगर हम n को 20-25 रखें तो 50-50 जनरेट करने के लिए 2n का सहारा लेना होगा. ठीक है, तो अगर मैं ये एक पॉलिनोमियल को देखूं z टू द पावर 2n, और सपोज अगर आप में x टू द पावर 2n, यू आर मोर कंफर्टेबल विद दिस सिंबल. ठीक है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का देखूं, स्पेसिफिकली मैं इस केस में n को 20-25 ले रहा हूँ. तो फिर इसका क्या क्या रूट आएगा? क्लियरली एक रूट तो जो आएगा वो दिख रहा है, x इक्वल टू +-1 आने वाला. नाउ कैन यू थिंक ऑफ अदर रूट्स? यस, दैट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि x का पावर 2n इक्वल्स 1. फिर 1 को मैं लिख सकता हूँ इन जनरल cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x का जो वैल्यू लोगे वो आ जाएगा cos 2k पाई बाई 2n प्लस आई साइन 2k पाई बाई 2n. वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज एंड. ठीक है, अब यहाँ से एज k चेंजेस, सपोज इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ k एज 1. ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या बनने वाला है? अगर k को 1 ले लूँगा तो वन ऑफ द वैल्यूज विल बिकम 2 विल गेट कैंसिल एनीवे. तो मेरे पास आ गया cos पाई बाई n प्लस आई साइन पाई बाई n.
सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन और वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ऑफ कोर्स इसका कितना रूट आएगा, 2n रूट्स आएगा. इफ आई पुट n इक्वल्स लेस से 5, सो इस x का पावर 10 इक्वल्स 1, 10th रूट ऑफ यूनिटी. अगर n को मैं 1 लूँगा तो इसका सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी +-1. तो ये यूनिट सर्कल को 2n पार्ट में डिवाइड करेगा, जो भी आंसर आएगा. ठीक है, तो k1 के लिए वी आर गेटिंग दिस आंसर. सपोज मैं k2 लूँ तो आप देख सकते हो k2 लोगे तो कितना आएगा, cos 2π/n प्लस i sin 2π/n. अगर मैं k3 लूँ तो cos 3π/n i sin 3π/n. ऐसे ही ये कितना रूट्स आएंगे, 2n रूट्स आएंगे. तो वन ऑफ द रूट्स तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, वन ऑफ द रूट है करस्पॉन्डिंग टू k = 0. क्योंकि k 0 लेंगे तो एक रूट कितना आ जाएगा, देखो k 0 रहने से 1 इज वन ऑफ द रूट. ओके, सो वी हैव रूट्स एज 1, ये वाला 3π/n 4π/n. ऐसे करते करते लास्ट रूट क्या हो जाएगा, n-1π/n प्लस i sin n-1π/n. अब मैं ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2n-1π/n आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2n आंसर है. तब देखो 1 से लेके 2n-1 में 2n-1 वैल्यूज आया रूट्स का, एंड 1 इज एक्स्ट्रा. सो टोटल रूट्स इज 2n. Okay, which is basically fundamental theorem of polynomials also. Every polynomial will have exactly n complex roots of degree, maybe real or imaginary. लेकिन अब मैं इस रूट्स को, तो k का मैं कोई भी 2n कंसिक्यूटिव वैल्यू ले सकता हूँ, विच आई वॉज डिस्कसिंग देयर. जैसे आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके 2n वैल्यूज ले लो, या फिर अगर मैं k को ऐसा ले लूँ, सपोज एक वैल्यू 0 ले लिया, एक +-1 ले लिया, एक +-2 ले लिया, फिर लास्ट वैल्यू +-n-1 ले लिया, तो ये भी एग्जैक्टली 2n वैल्यूज आ गए. ठीक है, तो अगर कोई बंदा इंस्टेड ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 वो ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर लिया 0, 1, 2 और इस डायरेक्शन में n-1 वैल्यू फिर पीछे ले लिया, बिकॉज दिस इंड्यूसेस सिमेट्रिसिटी. तो शायद कैलकुलेशन और अच्छा मज़ेदार होने वाला है. ठीक है, -n-. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन सेलेक्टिंग लेट्स से 0 से 2n वैल्यूज और फिर 0 +-1 करके, ये दोनों सेम ही चीज़ दिखा रहा है. सीधा ओनली डिफरेंस विल बी, जब आप 0 से 2n वैल्यूज ले रहे हो तो आप फर्स्ट रूट यहाँ मिलेगा, करस्पॉन्डिंग टू k = 1 विल गेट रूट हेयर, k = 2 विल गेट रूट हेयर, k = 3 हेयर, 4 हेयर, ऐसे ऐसे k = 2n हेयर. अब अगर कोई बंदा ऐसा ले लिया k का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, तो फिर मुझे ऐसा मिलेगा, 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग ये मिला, -1 के करस्पॉन्डिंग ये, 2 के करस्पॉन्डिंग ये, k = 2 एंड दिस विल बिकम k = -2 के करस्पॉन्डिंग. सो बेसिकली यू आर एबल टू गेट फिल्टर ऑल द रूट्स. हाँ, इन व्हाट ऑर्डर यू आर फिल्टरिंग, एक मतलब डायरेक्टली ऐसे काउंट कर रहे हैं, और सेकेंड केस में जो हम काउंट कर रहे हैं, अपन ने इसको काउंट किया, फिर इस दोनों को, फिर इस दोनों को, फिर इस दोनों को. सो दिस सिर्फ द वे ऑफ काउंटिंग डिफर्स. अब कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, सर आई विल टेक k = 10 टू लेके 2n + 10, तो ये भी सही है. तो मे बी फॉर k = 10 ही विल फर्स्ट गेट दिस आंसर, और फिर जब 2n किया तो पूरा एक लूप में घूम गया. तो ये आइडिया बहुत ही एक सिंपल है, बट स्टिल यूजुअली स्टूडेंट्स डजंट गिव मच फोकस टू दिस. सो द पॉइंट इज, आप कोई भी k का 2n कंसिक्यूटिव वैल्यू उठा सकते हो. अब यहाँ पे आई विल ट्राई टू सेलेक्ट दिस वैल्यू. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिक है और मज़ेदार आएगा. वैसे आप अगर ये भी करोगे तो बात बराबर ही है. यू कैन फील लाइक करस्पॉन्डिंग टू k = 1 एंड k 2n-1 दैट दे विल बी कंजुगेट ऑफ ईच अदर. ठीक है, उसको आप बेसिक से फील कर सकते हो. सो विद दिस tool now I can tell x का पावर 2n-1 very happily. ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट बनने वाला है वो अब मैं एक रूट बोल दूँ, +-1 होगा, दूसरा हो जाएगा cos +-π/n एंड i sin +-π/n. ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस के साथ प्लस जाएगा और माइनस के साथ माइनस, नो अदर प्लस एंड माइनस कॉम्बिनेशन इज नॉट देयर. ओके, करस्पॉन्डिंग टू k = +-2 जो आएगा वो रूट आएगा एक 2π/n प्लस i sin 2π/n, और एक जो चौथा आंसर आएगा वो आ जाएगा -2π/n और -2π/n. तो मैं इसको भी +-, तो ऐसे अब देखो यहाँ से 2 रूट आया, यहाँ से 2 रूट आया, ऐसा ऐसा मेरा n फैक्टर बनेगा, और लास्ट रूट जो होने वाला है वो आएगा cos +-nπ/n n प्लस i sin +-nπ/n. n-1. आई होप दिस क्लियर. ठीक है, इसको आपको आसानी से बेसिक से समझो. अब देखो, आर्म्ड विद दिस, सिंस दीज 2n's आर द रूट्स दैट वी आर हैविंग इन द पॉकेट, तो अब मैं x का पावर 2n-1 को फैक्टराइज कर सकता हूँ. कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ? देखो, इसको x-1 इंटू x + 1 रख दिया. अब सेम काइंड ऑफ रूट को एक साथ रखा है,
ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, x माइनस ये जो रूट है, लेट्स कॉल इट इन ऑयलर्स फॉर्म e का पावर i पाई बाई n। फिर मैं दूसरे रूट्स को रखा x माइनस e का पावर माइनस i पाई बाई n, ठीक है। ऐसे ही मैं 2 पाई बाई n करते करते लास्ट रूट तक, अगर मैं बिकॉज बाई फैक्टर थे आई कैन मल्टीप्लाई, तो इसका जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस रूट्स को वी कैन राइट इन अ कूल वे। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये आ जाएगा x माइनस कॉस के पाई बाई n प्लस आई साइन के पाई बाई n इंटू एक्स माइनस सेम कॉस माइनस के पाई बाई n प्लस आई साइन माइनस के पाई, ठीक है, कॉस के अंदर भी ब्रैकेट, एंड दिस प्रोडक्ट इज रनिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, रनिंग फ्रॉम k इक्वल टू 1 to n माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये 2n माइनस 2 रूट्स देगा और यहाँ पे 2 रूट्स है, तो टोटल 2n रूट्स। अब ऐसे करने से क्या बेनिफिट मिला, देखो ये तो मल्टीप्लाई होके एक टर्म बना देगा, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल्स 1 to n माइनस 1 एंड दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस, आप देख सकते हो 2s, क्योंकि a माइनस b इंटू एक्स माइनस दिस बिकेम 2x टाइम्स कॉस k पाई बाई n प्लस 1, ठीक है। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस ई टू द पावर आई थीटा है इंटू एक्स माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा है, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा टाइम्स एक्स और प्लस 1। अब ये जो है वो तुमको पता है, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये 2 कॉस थीटा आ जाएगा, सो दैट्स व्हाट आई एम रिटन एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू के पाई बाई n प्लस 1। सो आई होप दिस इज क्लियर, गुड, ओके। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू आवर सॉल्यूशन, क्योंकि अब इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है, जो अब मैं देख सकता हूँ x का पावर 2n माइनस 1 जो है वो ये एक्सप्रेशन है। अब देखो ये जो मैं आइडिया बता रहा हूँ एग्जैक्टली सेम है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला, सो फॉर दोज हु आर ऑलरेडी फेल्ट इट यू कैन स्किप द वीडियो, लेकिन आई रिकमेंड आप लास्ट तक देखिए, बिकॉज सिमिलर आइडियाज़ पे क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई एडवांस पूछे हुए लास्ट ईयर भी, ये प्रोडक्ट वाला आइडियाज़ पे दिस आइडिया। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो जाना है साइन के प्रोडक्ट में, अब यहाँ तो x है तो x को हटाना होगा। अब x को हटाने के लिए एक तो तरीका है जो आप x को 0 कर दो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1 तुमको मिलेगा। अगर मैं x को 1 कर दूँ तो एक दैट इज़ अ गुड हो, वाई दैट्स अ गुड हो, क्योंकि x 1 करने पर ये एक्सप्रेशन जो है ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस के पाई बाई n, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस के पाई बाई n एंड दिस विल बिकम 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के पाई बाई n बाई 2। तो अब यहाँ से कुछ फील आ रहा है, देखो यहाँ से फील आ रहा है ना, के पाई बाई 2n काइंड का फीलिंग जनरेट हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन भी तुम्हारा बेसिकली वही था, के पाई बाई 2n काइंड का फीलिंग यहाँ से जनरेट हो गया। तो अब यहाँ से मोटिवेशन तो क्लियर है, अगर मैं इस दोनों एक्सप्रेशन में 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो वहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर करके इस टाइप का टर्म जनरेट कर सकता हूँ, साइन के पाई बाई 2n, ऑफकोर्स स्क्वायर है तो रूट आएगा इसलिए, ठीक है। सो पाई बाई 2n 2 पाई बाई 2n 3 पाई बाई 2। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, अगर मैं डायरेक्टली x इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दूँ, अब देखो यू विल गेट 0 इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, राइट, सो दैट बिकम 0 इक्वल टू 0। सो मैथ्स इज नॉट एबल टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा क्या हुआ, मैथमेटिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो अब मैथ्स को थोड़ा हम फुल करेंगे। अब देखो हाउ टू फुल मैथ्स, तो उसके लिए आपको स्मार्ट बनना होगा। x का पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 1 पे तो हम नहीं कुछ आ रहा है, तो इमेजिन इफ x इज नॉट 1 तब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस के पाई बाई, ऑफ कोर्स आई कांट डिवाइड व्हेन x इज एक्चुअली 1, ठीक है। तो मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, x को एग्जैक्ट 1 नहीं ले रहा हूँ, टेंडिंग टू 1 रहा हूँ, और सिंस ये तो कंटिन्यूस ही एक्सप्रेशन है, तो इसमें वेदर पॉलिनोमियल में तुम x टेंडिंग टू 1 लो या x 1 लो, वो बात बराबर होगा। अब इस चीज़ को मैं कैसे मैनिपुलेट कर दूँ, इसको आई कैन राइट एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट मैनिपुलेट दिस एंड इट्स लाइक x का पावर n माइनस 1, तो अभी लास्ट प्रॉब्लम में ही मैं बताया था, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू 1
प्लस एक्स, फिर इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे करते करते ये कितना टर्म देगा, एन टर्म देगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का पावर एन माइनस वन। और आप लॉपिटल से भी इसका लिमिट निकाल सकते हो, आप लिमिट एक्स टेंस टू वन भी फाइंड कर सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आप देखो, अगर मैं एक्स टेंस टू वन दूँ, जो कि दिस बाई दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन चले जाएगा बाय फैक्टराइजिंग। इफ आई पुट वन, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, वन प्लस वन एन माइनस वन और वन तो एन टाइम्स, ठीक है। तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया, क्योंकि इसका जो वैल्यू आया वो मेरा एन आ गया। कब, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू वन। अब एक्स टेंडिंग टू वन में ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, ये तो दे रहा है 4 साइन ए स्क्वायर के पाई बाई 2n। तो अब मज़ा आ गया। आप देखो आर एच एस हो गया, एल एच एस हो गया एन, ठीक है। आर एच एस क्या हो गया, के इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू वन टू एन माइनस वन 4 साइन स्क्वायर के पाई बाई 2n, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो के इक्वल टू वन पुट करने पे 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 2n, के टू पुट करने पे 4 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 2n, ऐसे करते करते के एन माइनस वन पुट करने पे 4 साइन स्क्वायर एन माइनस वन पाई बाई 2n, and that becomes n. So now we have how many 4s are there, n minus 1 4, so 4 का power n minus 1, we have sin pi by 2n, sin 2 pi by 2n, ऐसे करते करते sin n minus 1 pi by 2n, ये होल स्क्वायर बन गया, राइट, एंड दैट इक्वल्स n। अब मंजिल दूर नहीं है, तो n बाई 4 का पावर n माइनस वन, स्क्वायर रूट जो अपने पास आया ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ साइन के पाई बाई 2n वाला टर्म, फिर के में 1 से माइनस वन, ठीक है। तो होप आपको मज़ा आया होगा। अब ये सॉल्यूशंस काफ़ी सिंपल हो गया, क्योंकि अब यहाँ से इट्स स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई 4 raised 2 raised to power 2n माइनस वन टू द पावर हाफ, तो हाफ हाफ गया, और जो आंसर अपने पास आया वो स्क्वायर रूट ऑफ n बाई 2 का पावर n माइनस वन, ओके। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग आंसर है, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टूडेंट डेफिनेटली सरप्राइज मी अलॉट। ये सरप्राइज इसलिए क्या है, क्योंकि देखो ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। इसका क्या मतलब है, अगर मैं k इक्वल टू वन डालूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 50-50, फिर साइन ऑफ 2 पाई बाई 50-50, सो दे आर हाईली इरेशनल। लेकिन देखो इसका प्रोडक्ट जो है अप टू साइन ऑफ 20-24 पाई बाई 50-50, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है, देखिए यार, ठीक है। ऐसे अगर तुम डायरेक्टली बिना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर चाहो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो तुमको फर्स्ट लास्ट टर्म लो, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करो एंड ट्राई टू यूज साइन टू थीटा फार्मूला सच दैट यू कीप ऑन ईटिंग द सीरीज, होता है ना, लाइक इस बेसिकली आई कॉल्ड चेन रिएक्शन। सो आपको इनिशिएशन करना होगा, चेन इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन होगा और फिर टर्मिनेशन होगा। यही बेसिक है हिस्ट्री में भी, लाइक केमिस्ट्री। आप इनिशिएटर बहुत टाइम आप कॉस से मल्टीप्लाई करते हो, तो कॉस थीटा इनिशिएटर होता है, जो बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा मिल के कंबाइन कर जाएगा, ठीक है ना, और वो साइन टू थीटा देगा। तो ऐसे ऐसे करके जो मेनी टर्म्स जो है साइन सीरीज का वो मरते जाएगा। अब बेसिकली अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में आओ और कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो, अभी जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं 2024 एडवांस और मीन्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खास के जो 2025 और 2026 में लिखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको टाइम देना होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन बनाओ अच्छा लेवल का बेसिक्स पढ़ने के बाद, और उस पर पूरा टाइम दो। तुम ये सोचो लाइक हाउ आइडिया इज जनरेटेड, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखने के बाद मेरे दिमाग में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आना चाहिए, वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि एक जो सिंपल बच्चा होगा, जो नॉर्मल बच्चा अगर पढ़ रहा है कोचिंग में भी, तो वो डायरेक्टली हिल ट्राई टू लाइक यूज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स टू गेट टू द आंसर। सो क्वेश्चन है जो कैन वी गेट टू द आंसर बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, डेफिनेटली यस, लेकिन वो एक्सट्रीमली लेंदी और हैक्टिक हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का लैंग्वेज भी तो बेसिक से ही आया है ना। फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक इज द डेफिनेशन ऑफ रूट माइनस वन, एंड यू आर फ्री टू डिफाइन एनीथिंग। आप चौक डस्टर कुछ भी डिफाइन करो, रूट माइनस वन को एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, एंड देन यू आर ट्राइंग टू मिमिक द सेम अलजेब्रा एज वी आर पुशिंग फॉरवर्ड फॉर द रियल नंबर,
ठीक है, इसीलिए सब कुछ सबसे कनेक्टेड है। आप चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर करो या फिर वेक्टर्स करो, 1 प्लस आई सेम एज आई प्लस जे कैप, और दैट इज सेम एज अ पॉइंट 1, 1 इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इज सेम एज r, थीटा, ओके 1, √2, π/4, तो और इट्स सेम एज मैट्रिक्स, अ कॉलम वेक्टर 1, 1 और अ रो वेक्टर 1, 1। सो मैथमेटिक्स सब तो इंटर रिलेटेड टॉपिक है, आपको टाइम देके समझना होगा। एंड इट्स बेटर आप जो वीडियोज़ में डालता हूँ ना, इसको आप देखते रहो। तो माई फोकस इज़ नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू माइट हैव अंडरस्टूड। फोकस जो है यहाँ वो क्रिएट थॉट प्रोसेस करना है, क्योंकि दैट इज़ लैकिंग, okay, like for mathematical education in our country, unfortunately. Thank you, have a good day. Please do like and subscribe the channel and share among your fellow students.